इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी नीतियों ने, आपकी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स पॉलिसीज ने, आपका महिला सशक्तिकरण की ओर जो गौर रहा है, मैं उसका नतीजा हूँ कि एक दिव्यांग महिला जो 40 साल की उम्र में खेलने निकली और फिर आपकी बनाई पॉलिसीज के तहत, गवर्नेंस के तहत मैं आज इतनी सशक्त हूँ कि मैं अपने खेल से देश को अनेकों मेडल दे पाई। और ना खाली मेडल दे पाई, आज विदेशों में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड मेंबर बनकर अपने देश की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। First time, I think, if I recall correctly, was at Mukesh Bhai Ambani's house when he had come at the inauguration of the HN Reliance Hospital. That's the first time that I met him. What was very heartening at that particular evening was that I was standing behind in the second row, and in the front were the leading luminaries of the Indian industry. My height was, but he saw me and he put his hand across and he said, Gavaskar ji, kaise hai aap? How are you? That was really heartening. VVS Lakshman Kapil, myself, had flown to Australia because not obviously with the Prime Minister, but uh, with the help of the ministry, who had asked us to be there for that particular sector of the trip. I think he was also going to Fiji and some other countries, and this was, if I recall correctly, it was the first ever trip by an Indian Prime Minister to Australia, which in itself was amazing. That all these years, no Indian Prime Minister had gone to Australia, and there was a dinner at the Melbourne Cricket Ground, at the ground itself. They have lovely, lovely, reception halls, etc. So it was over there. But before that, there was a photo opportunity. There were three Australian players as well. Steve Waugh, Glenn McGrath was there, and so it was a photograph with the six of us: the Australian Prime Minister, the Indian Prime Minister. They were not the security that is normally around, heads of state. I was able to have a conversation with him, a conversation where I requested some time to meet up with him. He said, of course, not a problem at all." And then I also suggested that I was going to be in Delhi on certain dates and whether those dates suited him. And he said, "Yes, Parliament will be on, but we will still, don't worry, we will still be able to find a date." Because there was nobody around, just the two prime ministers and the players. We were a little bit away, and this is a remarkable thing, and is that I said to him, Ki, "Sir, who should I contact to take this further?" He said, "आपने बोल दिया, ठीक है." About 2 weeks later, 3 weeks later, we were in Singapore at that time, and I was part of the franchise called Singapore Slammers, which was playing in the International Tennis Premier League. And I got a call from the Prime Minister's office saying that you had, requested the Honorable Prime Minister for a meeting on such and such a date. So, would you still be able to make it? I said, "Of course, I'd be able to make it." And I mean, that was remarkable because look, a Prime Minister, he's got so many things on his mind, so many things on his mind, and yet to remember a request and not to forget it, because it's so easy. I mean, all of us, we might say something, "Yeah, I'll call you." Simple thing like "I'll call you," and we don't always remember. Not that we deliberately forget, but there are so many other things that can happen in the course of that day or in the course of the next few days that can take your mind away. But that really was something which I've never forgotten. When we met him, we requested him uh, to come for the opening of the second the Sai Sanjeevani Hospital. This was in Palwal in Haryana, which is about 70-80 minutes from Delhi. And he did it by, I think, remote.
So again, that was a real big blessing for the hospital as well. So something that you can never forget is that despite all his busy situation and all the matters that would be weighing on his mind when you're the prime minister of the country, so many things that happened. But just to remember this request, I've never forgotten that. He is very keen to have a hospital in Varanasi, and that is something that he sometimes has asked. There was an occasion when there was a foundation stone laying ceremony for the stadium in Varanasi that was to take place, and Sachin Tendulkar, Ravi Shastri, Kapil Dev, myself, Roger Binny, who was the president of the BCCI then, we were all called for the foundation stone laying ceremony, and the honorable prime minister was to come. We were told since the prime minister's program is pretty much second by second, minute by minute, and he came in, and he spoke to Ravi first, and the next, when he came to me, I was standing there, came to me, and his first question was, Gavaskar ji, वो हॉस्पिटल का वाराणसी के हॉस्पिटल का क्या हो रहा है? And so he actually saved me the bother of asking the question. And the UP CMD was also just behind him. So I was able to say that yes, it is in process, and that Yogi ji is helping with that as well. He was also very anxious to know how we are going to not only the Varanasi hospital, how we are going to try and expand so that more and more children can be given this totally free of cost surgeries. I would like to wish the Prime Minister Modi is a long life, long, healthy life, a productive life as we have seen so far. And his dream of Viksit Bharat will become a reality sooner than the target date that he has set. Modi ji has done for sports in India is obviously words of encouragement, and always encouraging the players to do better, to win, but always saying that whether you win or lose, he's always standing beside you. The most surprise moment, I wouldn't say was a surprise, but as I said, being humble and just words of encouragement was very comforting for me. So Modi ji's one personality I would say anybody would adopt would be his humility. Whether you are Prime Minister of India or a normal person, your attitude towards every person is the same. A very happy birthday to our Prime Minister Modi ji. God bless, great health. I met first Honorable Prime Minister Modi ji, I think in Gujarat. I don't know exact year, but ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम अहमदाबाद में ओपनिंग सेरेमनी था, और दिस वाज अ प्राइवेट स्टेडियम ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड ट्रांस स्टेडिया. तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फुटबॉल का बारे में काफ़ी नॉलेज था उनके साथ प्राइम मिनिस्टर जी को, एंड देयर वर कपल ऑफ अदर स्पोर्ट्स स्टार्स भी, क्रिकेटर्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल सभी को टाइम दे के हम लोग अच्छे से मिल सके उस समय. अंडर 17 जो हम लोग का वर्ल्ड कप किया था मेंस का, उस समय आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज इनकरेजमेंट. उनका जो सपोर्ट था, मैं हमारा प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी के साथ उस समय फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ मिला. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मोदी जी ने काफ़ी सपोर्ट करके, और सबसे सफलता अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया ने उस साल होस्ट किया. इतने वर्ल्ड कप्स हुए थे अंडर 17 का, बट इंडिया में जो सक्सेस हुआ वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ अंडर 17 वर्ल्ड कप. जो लास्ट ओलंपिक खेला, आई थिंक इंडिया वाज द बेस्ट सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स को जो सपोर्ट था, एक्सपोजर से लेके फाइनेंस, जो इक्विपमेंट से लेके ट्रेनिंग, आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टेड एथलीट्स इन द ओलंपिक्स इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड एक्सपोजर. फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, और मोदी जी हर एक कंट्रीज़ को ट्रैवल करते रहता है, एंड जितने भी कंट्रीज़ जाता है वो कंट्रीज़ में स्पेशली फुटबॉल
नंबर वन स्पॉट ही होता है, चाहे यूरोप जाए, चाहे आप गल्फ कंट्रीज ही जाए। आई थिंक वो लेके उनको काफ़ी जानकारी रहता है कि क्या कौन सा कंट्री में क्या स्पोर्ट्स है और कौन स्पोर्ट्स आइकॉनिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में आता है और जब भी कोई बात रखना है तो नॉर्थ ईस्ट का स्पोर्ट्स पर्सन को लेके वो हर समय बात रखता है उनका स्पीच में। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को एक यू नो एक it makes them feel proud, it makes them feel happy, but बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और मोटिवेटेड रहता है। प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इतना बिजी रहता है, उनका डिप्लोमेटिक से लेके इतना जो काम रहता है, आई थिंक दे आर सो बिजी, बट टू रियली सी कि एक कोई भी स्पोर्टिंग बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हो जो इंडियन एथलीट्स है, इंडियन टीम्स कर रहा है, उनका भी वो जिक्र करके अवेयरनेस रख के रिजल्ट्स रह के क्या हुआ, तो माइन्यूट डिटेल्स उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है और फॉलो करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। हम लोग तो सोचते हैं अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उनको इतना मालूम नहीं चला ये स्पोर्ट्स में क्या होगा, लेकिन जब एथलीट्स के साथ बात करता है तो एक्चुअली काफ़ी स्कोर लाइन से लेके डिटेल्स जब बात करते हैं तो आई थिंक एथलीट्स को भी शौक हो जाता है कि अरे इतना डिटेल्स में आपको नॉलेज है और जानकारी रख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग। पोर्चुगल में मोदी जी के साथ आई थिंक अंडर 17 वर्ल्ड कप जब हो रहा था उनके साथ मैं अवार्ड लिया और 1-2 मिनट का बात करने को मिला। तो फुटबॉल लेके उस समय मोदी जी ने खुद बताया कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल फ्लो सपोर्ट दे रहे थे अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए, और हमारे लिए भी आई थिंक एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना फर्स्ट था इंडिया के लिए, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप कोई मेंस का सीनियर्स का तो बहुत ही बड़ा होता है, वो तो बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड है, बट अंडर 17 का ऑर्गेनाइज करना हम लोग के लिए फीफा इवेंट फर्स्ट था। उनको जानकारी था कि फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, सारा दुनिया एक ही स्पोर्ट खेलता है वो फुटबॉल, एंड फुटबॉल का स्टार्स मेसी से लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेके काफ़ी नाम जानकारी था, और उनको ये उनका भी एक इंटरेस्ट था कि एक इंडिया भी एक सुपर पावर बने फुटबॉल में। और उनको जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो का स्टोरी जब वो पोर्चुगल गए थे, तो जब उधर का आई थिंक लोग से मिला तो उन्होंने काफ़ी बात किया कि इंडिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो वो लोग भी थोड़ा आई थिंक सरप्राइज भी हुआ, खुश भी हुआ, बिकॉज वो लोग नहीं सोचा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप और पोर्चुगल में तो फेमस है बट इंडिया में भी इतना पॉपुलर है। और जब प्राइम मिनिस्टर ही खुद बोल देता है उधर का डिप्लोमैट्स और लोग को, तो आई थिंक दे वर आल्सो क्वाइट सरप्राइज। स्पेशली स्पोर्ट्स में आई थिंक मोदी जी इज बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग, एंड वी सीन थ्रू आउट। यस, खेलो इंडिया स्कीम है, ऑब्वियसली इसको और स्ट्रेंथन करना है, एंड होपफुली आई थिंक विद द काइंड ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्पोर्ट्स हम लोग आगे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली अंडर लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये ओलंपिक्स भी वी आर ट्राइंग टू होस्ट ओलंपिक्स इन इंडिया। आई थिंक दिस आर समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू host Olympics and hopefully FIFA World Cup as well. But at the same time, I think we as sports person and people involved with sports ko bhi, we need to start delivering good results so that at least the government and the Prime Minister ko और I think उत्साह और जोश आएंगे इसको और आगे ले जाने के लिए। I would like to wish Honorable Prime Minister Modi ji happy 75th birthday, and I hope you keep inspiring everyone, especially sports person, but every countryman across India and across the world. So thank you so much for all your support to every one of us. So wishing you a very happy birthday. I would like to wish our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on his 75th birthday. I speak on behalf of the Indian Chess Fraternity and the World Chess Federation, FIDE, in thanking the Prime Minister for his continued support for sport, and we send our best wishes on this happy milestone. जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, तब से उन्होंने स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया है। उनका भी एक विजन था कि भाई हम लोग भी ओलंपिक्स में जाएं, हमारे भी ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आए, और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट भी बढ़ा है जिससे हमें फ़ायदा भी हुआ। तो ये एक ख़ास बात है प्रधानमंत्री जी की
चाहे वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हों, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हों, जो भी कोई मेडल लेके आता है या जो भी जिसका भी प्रोत्साहन बढ़ाना होता है, तो वो ज़रूर आगे आकर उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात में थे एज़ अ चीफ मिनिस्टर, तब गुजरात की स्पोर्ट्स को भी बहुत आगे तक लेके गए, और अब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा नाम हो भारत का, और उसके लिए वो जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो रहे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिन की, और उम्मीद करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ऐसे ही देश को आगे लेके जाएँ। Here's wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very, very, very happy birthday. Every interaction that I've had the privilege of having with him has been nothing short of inspiring. He's been someone who has taken personal interest in each individual's life. To me, something that personal really touched my heart. He has always offered support. He has always offered us help as sportsmen of the country, and I would like to wish him all the very best. I would like to give all my greetings on this special birthday of his, and I hope this year is as special or even more special than the others. सन तो याद नहीं है, ये ज़रूर है कि गुजरात में अहमदाबाद में हुई थी, और उस समय इनकी चर्चा बहुत ज़ोरों से थी कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर आए हैं जो एक दिन में पूरा अपना काम फाइल बंद करा देते हैं, काम ख़त्म होने की, कि ये परमिशन मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो शायद वो एक नया सोच थी हमारे लिए, कि हम सोचते थे कोई भी काम होता है उसको 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, और यहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला एक ही दिन में आपकी सारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा था, वो गुजरात के जब सीएम बने। नहीं, हम गए थे कुछ गुजरात में स्पोर्ट्स के बारे में, और उन्होंने हमें सलाह दी कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल के बाद वो मिले, उनको वो बात याद थी, उसका चीज़ का क्या हुआ। शायद पॉलिटिशियन में यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनको याद रहती हैं हर चीज़ें, अगर वो किसी से कोई चर्चा करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इतना काम एक सीएम के पास होता है, तो उनको वो याद था। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब भी उन्होंने पूछा उस काम का क्या हुआ। जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए, तो मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ और थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इसीलिए शायद ये आदमी इतने काबिल हैं कि इनको हर चीज़ याद रहे। नहीं, उस समय मेरा सोचने का तरीका अलग था कि ये क्या सोचते हैं, और बड़ा ओपन माइंड था, क्योंकि इनका जो हमें सुनने में आता था, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके यहाँ से ऊपर आए हैं, या उनका पैशन था ये। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आज हिंदुस्तान इस जगह पर पहुँच गया। अगर कोई आदमी काम करना चाहे, मेहनती है, तो वो कुछ भी बन सकता है, एज फार एज प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो उस समय भी चर्चा थी कि ये चाय पिलाया करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जहन में रह जाती हैं, तो शायद मैं उस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ। एंड ऑस्ट्रेलिया में गए थे उनके साथ, पहली बार ऐसा लगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन को साथ लेके जा रहे हैं और कंट्री का एक इमेज बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए। शायद हमारा आउटलुक थोड़ा अलग होता है, वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और उनका सोच बिल्कुल अलग होती है। तो वो अपने नज़रिए से जानना चाहते थे कि क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो वो एक अच्छा लगा कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे लिए इतना टाइम है कि पूछ सकते हैं क्या होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ के बारे में उस समय चर्चा की थी। मुझे आज भी लगता है कि जो हमारे नोट्स हैं, जो रुपया है, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन है या कैनेडियन है। अगर वो होगा तो डुप्लिकेट नहीं हो सकते। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा सुनने की इच्छा थी, बताने से अच्छा कि हम क्या बता सकते हैं। लेकिन उनकी अच्छी सोच ये थी कि दे आर रेडी टू लिसन।
नहीं, उनके साथ जाना ही ऐसा लगा कि इंडिया का एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम कह सकते हैं, दुनिया में जाते हैं तो इंडिया का एक ब्रांड है। लोग कहते हैं कि आपकी कंट्री ग्रोथ हो रही है, और शायद इसका ये नहीं कि पिछले 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से ये आए इन्होंने एक ब्रांड खड़ा किया है कि इंडिया इज़ अ ब्रांड। उसके लिए शायद वी एज ए स्पोर्ट्स पीपल फील वेरी प्राउड जब बाहर जाते हैं और द पीपल वेलकम यू। आई थिंक वो एक मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, किसी इंसान को भी मिलता हूँ, और जब हम बाहर जाते हैं और हमारे कंट्री के बारे में अगर अच्छा बोला जाता है तो वी फील वेरी प्राउड। हाँ, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो 100 गुना बेहतर है। कोई प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि एक फंड्स चाहिए, जो इतनी प्रॉब्लम कंट्री गोज़ थ्रू, अर्थक्वेक जाता है, फ्लड्स होता है, ये होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाओ। तो जब आप सुनते हो प्राइम मिनिस्टर में और उस फंड फिर आप फंड देना चाहते हैं तो यू फील प्राउड अबाउट दैट। उन्होंने कोई मांगा नहीं था, एक स्टेटमेंट निकली थी, तो हमें अच्छा लगा कि हम जाकर वो फंड्स को और बड़ा करें और जो नीडी लोग हैं उनकी तरफ गौर किया जाए। देखिए, बहुत बहुत बार मिले हैं, हर चीज़ को बेहतर है कि ना बोला जाए। हम तो उनको सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम तो यही सोचते थे कि अब इनकी क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं, और कुछ चीज़ें हमें उस समय बोल देते हैं, कुछ चीज़ें आप सिस्टम में पढ़ लेते हो कि और 5 साल में सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना चाहते हैं। तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ें नोट करता रहता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना ही सबसे बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट होती है, अगर आप ऐसे देखें तो इसलिए उनका अच्छा लगता है। सबसे बड़ी जो मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि उनको याद रहता है, और हम सोचते हैं हम क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम भूल जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा लोगों को मिलते हैं और वो सब कुछ याद रखते हैं कि किससे क्या बात की थी। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली है उनसे। आई थिंक एक तो मेरे को सबसे अच्छा, क्योंकि हम हिंदी बेस वाले हैं तो पहली बार कोई ऐसा आया जो हिंदी बेस को, शास्त्री जी के बाद जो हिंदी बेस को बहुत महत्व दी जा रही थी, तो ये एक ज़्यादा था कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप सही सोचते हैं, चाहे वो तमिलियन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सरदार हो, महाराष्ट्रन हो या किसी भी जात का हो, क्या आपके पास वो सोच है, वो उस चीज़ की ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए। बहुत बड़ी सोच है कि ओलंपिक्स होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ बहुत आसान नहीं है, और इतने बड़े शब्द निकालने कि हम ओलंपिक्स हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन उसके लिए सोच ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और शायद अगर हम एज ए स्पोर्ट्स पीपल ये सोचें कि ओलंपिक्स हिंदुस्तान में आ सकती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कभी भी, तो शायद ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा स्टेप है। तो जस्ट वांट टू विश ऑल द लक, and I hope our country keep on doing well under his leadership, and he made, उन्होंने पहचान बनाई है हिंदुस्तान की, वो बहुत ज़रूरी है। हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते, मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया, तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, हैव ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।